جگایا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ بیچ بازار ہی سو گیا تھا اور اب بازار کی گہما گہمی لوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنی بھیڑوں کے لیے ارد گرد نظر دوڑائی، تب اسے احساس ہوا کہ وہ ایک نئی دنیا میں ہے، لیکن افسوس کی بجائے خوشی کا احساس اس پر چھایا ہوا تھا۔ اسے بھیڑوں کے لیے چارے اور پانی کی تلاش میں مارا مارا پھرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنے خزانے کی تلاش میں جا سکتا تھا۔ اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، مگر اس کے پاس اعتماد کی دولت تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ لوگوں کے چہرے سے اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ اپنی منزل کے قریب ہیں یا دور۔ یہ بہت ہی آسان تھا، مگر اس سے قبل اس نے اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ اس نے گزشتہ رات فیصلہ کیا تھا کہ وہ بھی اس طرح کا مہم جو بنے گا جن کی کہانیاں اس نے کتابوں میں پڑھی تھیں۔ اس نے آہستہ آہستہ بازار میں چلنا شروع کیا۔ دکاندار اپنی اپنی دکانیں سجانے میں مصروف تھے۔ وہ ایک مٹھائی والے کی دکان سجانے میں مدد کرنے لگا۔ مٹھائی والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی اور طمانینت تھی۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کیا ہے۔ مٹھائی والے کی مسکراہٹ نے اسے بوڑھے کی یاد دلائی۔ یہ مٹھائی والا اس لیے مٹھائی نہیں بنا رہا تھا کہ وہ کسی تاجر کی بیٹی سے شادی کر سکے، بلکہ اس لیے مٹھائی بنا رہا تھا کیونکہ اسے یہ کام پسند تھا۔ اسی لیے اس کے چہرے پر طمانینت ہے۔ اس نے سوچا۔ جب مٹھائی والے کی دکان سج گئی تو اس نے لڑکے کو کھانے کے لیے مٹھائی دی، جو اس نے شکریہ کے ساتھ قبول کر لی اور اپنی راہ پر گامزن ہو گیا۔ چلتے چلتے اسے احساس ہوا کہ ایک آدمی عربی بول رہا تھا جبکہ دوسرا ہسپانوی میں جواب دے رہا تھا، جبکہ دونوں ایک دوسرے کا مفہوم سمجھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی زبان بھی ہے جس کا انحصار الفاظ پر نہیں ہے، اس نے سوچا۔ اس بات کا تجربہ وہ اس سے قبل بھیڑوں کے ساتھ بھی کر چکا تھا، اور اب وہی تجربہ انسانوں کے درمیان ہوا۔ وہ ہر قدم پر ایک نئی چیز سیکھ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ باتوں کا تجربہ وہ اس سے قبل بھی کر چکا تھا، مگر تب اسے اس کا ادراک نہیں تھا۔ اسے ان چیزوں کا ادراک اس لیے نہیں تھا کیونکہ وہ ان کا عادی ہو چکا تھا۔ اگر میں یہ زبان سیکھ لوں جس کا انحصار الفاظ پر نہیں ہے تو میں پوری دنیا کو سمجھ سکتا ہوں۔ مطمئن اور پرسکون، اس نے تانجیر کی گلیوں میں ٹہلنے کا ارادہ کیا۔ اس طرح وہ نشانیوں کا مشاہدہ کر سکتا تھا، مگر اس کے لیے صبر کی ضرورت تھی، اور پھر چرواہے سے زیادہ صبر کون کر سکتا ہے؟ اس نے جو کچھ بھیڑوں کے ساتھ سیکھا تھا اس کا اطلاق ایک نئی جگہ پر کیا جا سکتا تھا۔ تمام چیزیں اصل میں ایک ہی ہیں، بوڑھے بادشاہ نے اسے بتایا تھا۔ کرسٹل فروش آج بھی اسی پریشانی کے ساتھ جاگا جو روز کا معمول تھی۔ وہ اس جگہ پر گزشتہ 30 سال سے رہ رہا تھا۔ اس کی دکان پہاڑ کی چوٹی پر تھی، جہاں گاہکوں کا گزر کم و بیش ہی ہوتا تھا۔ اس کو صرف ایک کام کرنا آتا تھا، کرسٹل کی پہچان اور خرید و فروخت۔ اس کا کاروبار کبھی عروج پر تھا۔ اس کی دکان کی شہرت دور دور تک تھی، اور اس کے گاہکوں میں عرب تاجر، فرانسیسی اور برطانوی ماہرین ارضیات اور جرمن فوجی ہوتے تھے۔ تب سب کچھ بہت اچھا لگتا تھا، اور وہ بہت جلد امیر ہونے کا خواب دیکھتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ تانجیر بھی بدل گیا۔ نزدیکی شہر سیوٹا اتنی تیزی سے پھیلا کہ تانجیر کی رونقیں ماند پڑ گئیں۔ اکثر دکانداروں نے اپنے کاروبار نئے شہر میں منتقل کر لیے۔ اب گاہک پہاڑی پر واقع خال خال دکانوں میں جھانکنے سے بازار سے خریداری کرنے کو ترجیح دیتے تھے، لیکن کرسٹل فروش کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے 30 سال اسی کاروبار میں گزارے تھے، اور وہ کسی دوسرے کاروبار سے بالکل ناواقف تھا، اور اب کاروبار بدلنا بعید از قیاس لگتا تھا۔ اس کی صبح لوگوں کو دیکھتے ہوئے گزرتی تھی۔ یہ سالوں سے اس کا معمول تھا، اور اب تو اسے لوگوں کے گزرنے کے اوقات بھی ازبر ہو گئے تھے۔ دوپہر کے قریب ایک لڑکا اس کی دکان میں داخل ہوا۔ لباس سے وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کا فرد لگتا تھا، مگر اس کی تجربہ کار نگاہیں کہتی تھیں کہ اس کی جیبیں خالی ہیں۔ دکان میں لگے ایک کتبہ سے اندازہ ہوتا تھا کہ دکاندار ایک سے زیادہ زبانیں بول سکتا تھا۔ میں کرسٹل صاف کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، لڑکے نے کاؤنٹر پر موجود شخص سے کہا۔
इस हालत में ये शायद ग्राहकों के लिए ज़्यादा कशिश का बाइस ना हो। दुकानदार ने खाली खाली नज़रों से लड़के की तरफ देखा। तुम मुझे बदले में कुछ खाने के लिए दे देना। दुकानदार अब भी खामोश था। लगता था कि किसी फैसला तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। लड़के ने सोचा कि उसे इस सहरा में जैकेट की फिलहाल ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा वो इसे क्रिस्टल साफ करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। उसने थैले से जैकेट निकाली और क्रिस्टल साफ करना शुरू कर दिए। आधे घंटे में उसने दुकान में मौजूद ज़्यादातर क्रिस्टल चमका दिया। अभी उसने काम शुरू ही किया था कि 2 ग्राहक दुकान में दाखिल हुए और उन्होंने क्रिस्टल खरीदा। जब वो काम से फारिग हुआ तो दुकानदार ने उसे खाने के लिए अपने साथ चलने को कहा। उन्होंने दुकान बंद की और नज़दीकी होटल पर चले गए। सिर्फ खाने के लिए तुम्हें यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? ताजर ने लड़के से कहा। कुरान हमें तलकीन करता है कि हम भूखों को खाना खिलाएं। तो फिर तुमने मुझे काम करने की इजाज़त क्यों दी? लड़के ने इस्तफसार किया। क्योंकि क्रिस्टल गंदा था और हम दोनों को अपने अपने जहनों की सफाई भी मतलूब थी, ताजर ने जवाब दिया। जब वो खाने से फारिग हुए तो दुकानदार बोला, तुम्हारे आने के बाद आज मेरी दुकान में 2 ग्राहक आए। ये एक नेक शगुन है। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी दुकान में काम करो। लोग निशानियों का बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं। लड़के ने सोचा, लेकिन शायद इन्हें भी नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं। क्या तुम मेरी दुकान पर काम करोगे? ताजर ने उससे इस्तफसार किया। मैं आज का पूरा दिन और पूरी रात तुम्हारी दुकान पर काम करूंगा और तुम्हारी दुकान की हर एक चीज़ चमका दूंगा। मुआवजे में मुझे मिस्र जाने के लिए ज़्यादा राह चाहिए, लड़के ने जवाब दिया। दुकानदार बेसाख्ता हंस पड़ा। अगर तुम मेरी दुकान में 1 साल भी काम करो और उसके अलावा मैं तुम्हें दुकान में फ़रोख्त होने वाली हर चीज़ पर कमीशन भी दूं, तो फिर भी मिस्र जाने के लिए ज़्यादा राह पूरा नहीं हो सकता। मिस्र यहाँ से हज़ारों मील दूर है और दरमियान में एक लकोदक सहरा है। एक लम्हे के लिए उसे ऐसे लगा जैसे हर चीज़ साकिन हो गई हो। फ़िज़ा में गहरा सन्नाटा था। बाजार सुनसान था। कोई उम्मीद नहीं, कोई महमजू नहीं। ना बूढ़ा शहनशाह और ना ही मंजिल का कोई निशान, ना खजाना और ना ही अहराम में मिस्र। दुकानदार की बात में जैसे जादू के अल्फाज थे, जिनके अदा होते ही सब कुछ गायब हो गया हो। दुनिया जैसे साकिन हो गई हो। ऐसा शायद इसलिए था कि वो खुद उदास था। उसने खाली खाली नज़रों से कैफ़े के दरवाजे से बाहर देखा। उसे लगता था कि उसकी रूह अभी परवाज कर जाएगी और सब कुछ इसी लम्हे ख़त्म हो जाएगा। दुकानदार तजस्सुस से लड़के की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों की तमाम चमक जो उसने सुबह देखी थी गायब हो चुकी थी और वो मायूस था। मैं तुम्हें इतना मुआवजा दे सकता हूँ कि तुम अपने मुल्क वापस जा सको, दुकानदार बोला। लड़का खामोश था। वो उठा, अपने कपड़े ठीक किए और थैला उठाया। मैं काम करूँगा। मुझे इतनी रकम चाहिए कि मैं कुछ भेड़ें खरीद सकूं। लड़के को क्रिस्टल की दुकान पर काम करते हुए 1 माह से ज़ायद का अरसा बीत गया था। ये काम उसकी तबीयत से मुताबिकत नहीं रखता था। दुकानदार हर वक्त टोकता था कि वो क्रिस्टल को एहतियात से उठाए, कहीं वो टूट ना जाए, और लड़के को ये नोक झोंक अच्छी नहीं लगती थी। वो इस काम से इसलिए चिपका हुआ था कि दुकानदार का रवैया उसके साथ अच्छा था और वो लड़के को सामान की फ़रोख्त पर माकूल कमीशन भी देता था। उसने अब तक कुछ रकम पसंदाज कर ली थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि अगर वो इसी तरह काम करता रहा तो 1 साल में वो इतनी रकम जमा कर लेगा कि वो कुछ भेड़ें खरीद सके। हमें क्रिस्टल के लिए एक शोकेस बनाना चाहिए, उसने दुकानदार से कहा। हम ये शोकेस दुकान के बाहर रखेंगे। इस तरह ग्राहक दूर से ही क्रिस्टल देखकर दुकान की तरफ मुतवज्जे होंगे। इससे कबल मैंने कभी क्रिस्टल दुकान के बाहर नहीं रखा। इस तरह इसके टूटने का खदशा रहता है, दुकानदार ने जवाब दिया। जब मैं अपनी भेड़ें चरागाह में लेकर जाता था तो इस बात का खदशा मौजूद रहता था कि कोई भेड़िया किसी भेड़ को उठाकर ले जाए, या फिर कोई भेड़ वीराने में बीमार पड़ जाए और मर जाए, या उसे कोई सांप डस ले। लेकिन दुनिया इसी तरह ही रवां दवां है।
दुकानदार कोई जवाब देने की बजाय गाहक की तरफ मुतवज्जे हो गया जो गिलास पसंद कर रहा था। आजकल उसका कारोबार उरूज पर था। ऐसे लगता था कि जैसे पुराने दिन लौट आए हों जब उसकी दुकान मरकज़े निगाह हुआ करती थी। कारोबार में बहुत बेहतरी हुई है। दुकानदार ने गाहक से फारिग होने के बाद लड़के को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी कमाई काफ़ी अच्छी है और उम्मीद है कि तुम भी बहुत जल्द अपना रेवड़ बनाने में कामयाब हो जाओगे। इससे ज़्यादा की तलब अच्छी नहीं होती, लेकिन हमें निशानियों को पहचानना चाहिए, लड़के ने बेसाख्ता कहा। फिर उसे अफसोस हुआ कि उसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि दुकानदार तो कभी बूढ़े बादशाह से मिला ही नहीं था। इसे मुताबिकत का असूल कहते हैं, क्योंकि ज़िंदगी कामयाबी में तुम्हारी साथी बनना चाहती है, बूढ़े बादशाह ने उसे बताया था। दुकानदार बूढ़े बादशाह से ना मिलने के बावजूद लड़के की बातें समझ सकता था। आखिर लड़के की इसकी दुकान में आमद भी तो दुकानदार के लिए बजाते खुद एक नेक शगुन था। हर गुजरते दिन के साथ उसकी आमदनी में बेहतरी हो रही थी। उसे कभी मलाल नहीं हुआ था कि उसने लड़के को मुलाजमत क्यों दी। वो लड़के को तनख्वाह के अलावा माकूल कमीशन भी देता था ताकि वो जल्द अपना रेवड़ बना सके। तुम एहराम में मिस्र क्यों जाना चाहते हो? उसने शोकेस का सवाल टालने के लिए बात का रुख बदलते हुए लड़के से पूछा। क्योंकि मैंने उनकी बहुत तारीफ सुनी है, लड़का बोला। वो दुकानदार से अपने ख्वाब के मुतल्लिक कोई जिक्र नहीं करना चाहता था, और वैसे भी अब खजाना भी इसके लिए तल्ख याद से ज़्यादा कुछ नहीं था और उसे दोहराना एक तकलीफ दे अमर था। मेरा नहीं ख्याल कि कोई अक्लमंद इंसान सिर्फ एहराम में मिस्र को देखने के लिए इतने बड़े सहरा को अबूर करना पसंद करेगा, दुकानदार ने जवाब दिया। एहराम पत्थरों का एक ढेर है जो तुम भी अपने घर के सहन में बना सकते हो। हाँ, जिसे सियाहत का शौक ना हो वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। और वो दुकान में दाखिल होने वाले गाहक की तरफ मुतवज्जे हो गया। मुझे तब्दीली शायद रास नहीं आती, दुकानदार ने अगले रोज़ कहा। सामने की दुकान का मालिक हसन शायद ख़रीदारी में गलती भी करे तो कारोबार के हुजम की वजह से उसे कोई काबिल ज़िक्र फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर हमें शायद अपनी गलती का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी बात में वज़न था। लेकिन तुम शोकेस क्यों बनाना चाहते हो? दुकानदार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। क्योंकि मैं जल्द अज जल्द अपना रेवड़ मुकम्मल करना चाहता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। जब किस्मत हमारे साथ हो तो हमें उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। शायद यही मुताबिकत का उसूल है, उसने अपनी बात जारी रखी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई के लिए एक किताब और अपनी सुन्नत छोड़ी है, दुकानदार ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। और हमें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 अरकान को पूरा करना है। सबसे अव्वल तो ये है कि हम अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाएं, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, रमज़ान के महीने में रोज़े रखें, गरीबों की मदद के लिए ज़कात दें। उसने थोड़ा तवक्कुफ़ किया। लड़का उसकी आंखों में अकीदत के आंसू देख सकता था जो पैगंबर के ज़िक्र के साथ निकल आए थे। वो एक सच्चा मुसलमान था और अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारने की कोशिश करता था। और 5वां रुकन क्या है? लड़के का तजस्सुस बढ़ रहा था। 2 दिन कबल तुमने कहा था कि मुझे शायद सफ़र का शौक़ नहीं है, दुकानदार बोला। इस्लाम का 5वां रुकन हज है। हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार मक्का मुकरमा में खुदा के घर की ज़ियारत करे। मक्का तो मिस्र से भी आगे है। जवानी में सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश थी कि किसी तरह इतना पैसा जमा कर लूँ कि अपना कारोबार कर सकूँ। इस तरह मैं हज के लिए रुपया जमा कर लेता और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ख़ानदान की गुज़र औक़ात का बंदोबस्त भी हो जाता। जब मेरा कारोबार जम गया तो मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिल सका कि जिसके हवाले मैं अपनी दुकान कर देता और ख़ुद हज के लिए रवाना हो जाता। इस दौरान कई काफ़िले मेरी दुकान के सामने से गुज़रे। उनमें से कुछ तो मालदार थे जो अपने काफ़िले में मुलाजमीन की फ़ौज के साथ हज को जा रहे थे, लेकिन अक्सरियत गरीब लोगों की होती थी। तमाम आज़मीन हज खुश होते थे। एक मोची भी हज पर गया था। वापसी पर उसने बताया कि इस सहरा को अबूर करने में उसे 1 साल लगा था, लेकिन उसे इतनी भी थकन नहीं हुई थी जितनी उसे तांजीर की गलियों में रोज़मर्रा के कामों के लिए चलने के दौरान होती थी। तो आप हज पर क्यों नहीं जाते?
لڑکے نے استفسار کیا۔ یہ مکہ جانے کی خواہش ہی ہے جو مجھے زندہ رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، ورنہ اس یکسانیت، ریک میں رکھے ہوئے کرسٹل کی خاموشی اور کیفے کا بد مزہ کھانا تو مجھے اب تک مار چکے ہوتے۔ اگر میرا مکہ جانے کا خواب پورا ہو گیا تو پھر زندگی میں اور کوئی امید باقی نہیں ہوگی جس کے سہارے میں زندہ رہوں گا، دکاندار نے جواب دیا۔ تم بھی اپنا ریوڑ بنانے اور اہرام مصر تک جانے کا خواب دیکھتے ہو، مگر مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ تم اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہو اور میں صرف اپنے خواب کے سہارے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں کئی دفعہ اپنے آپ کو چشم تصور میں صحرا عبور کرتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ خدا کے گھر میں حجر اسود کے سامنے اپنے آپ کو موجود پاتا ہوں اور خدا کے گھر کا طواف کرتا ہوں، لیکن یہ سب صرف تصورات میں ہوتا ہے۔ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ میرے جاننے والے میرے ساتھ ہیں، کوئی بائیں کوئی آگے ہوتا ہے اور کوئی عقب میں۔ میں صرف تصورات کی دنیا میں اپنے خواب کی تعبیر دیکھتا ہوں اور اس کے سہارے زندہ رہتا ہوں۔ اسی روز اس نے لڑکے کو شو کیس بنانے کی اجازت دے دی۔ ہر کسی کے نصیب میں خواب کی تعبیر اتنی جلد نہیں ہوتی۔